Good morning to everyone. Coding. So in the last lecture, we have done with the journal entries of the vendor company, who is also known as the transferor company. Uh, we are doing the chapter accounting standard 14, which is amalgamation, absorption and external reconstruction. In the last lecture, I have explained you all these terms. So, and also in the last lecture, we had also done with the journal entries of the vendor company. In amalgamation, what happens? One, there is a pure amalgamation where a new company is formed to take over to the existing two or more companies, and that is amalgamation. Absorption means one company is taking over the another existing company. So the company which closes down is the vendor who is selling their business, vendor company, or the transferor company whose assets and liabilities are being transferred to the other company. It can be the purchasing company or the new company. So what we will do today is we will do the journal entries in the new company, that is a purchasing company. We have done 15 journal entries in the vendor company, wherein I have told you we will be preparing realization account, shareholders account, cash bank account if it is not taken over by the purchasing company, and we will be preparing the purchasing company account. For that purpose, there are 15 entries, journal entries, which are base for us to do the ledger accounts. So now what we will do the accounting procedure of the purchasing company. Accounting procedure of the purchasing company. Of which company? Purchasing company, transferee company. Purchasing company, or you may also refer it as transferee company. The other vendor is the transferor. This is the transferee. This is known as the transferee company. Transferee company. Transferee company. So as per the accounting standard 14, the purchasing company is the company, in case of amalgamation, it is the new company which is formed by taking the existing two or more companies. In absorption, it is the existing company which is taking over the another existing company. In the external reconstruction, it is the same company which is coming up with the same name. So this is very important, purchasing company. So what we will do here, firstly, there are two methods in this purchasing company. There are two methods which we follow here. Amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of merger. In the nature of merger. The good thing is that this is not there in your syllabus. Not there in the syllabus. It was there, like when I was in my TY BCom, I had this amalgamation in the nature of merger also in my syllabus. And when I was teaching in BAF, they also in the previous years, they had both the methods, merger as well as purchase. Then we have another method, amalgamation in the nature of purchase. Nature of purchase. Now, there are certain conditions which satisfy that it is amalgamation in the nature of merger. Those conditions are, first one, assets and liabilities. So, first one is the assets and liabilities. Assets and liabilities. It is assumed in the nature of merger, all the assets and liabilities of the vendor company becomes the assets and liabilities of the purchasing company.
under merger method, what happens? All the assets and liabilities of the vendor company become the uh, assets and liabilities of the purchasing company. So, and the second condition is for the equity share capital. Equity share capital in the nature of merger, it is assumed that shareholders holding not less than 90% of the face value of the equity share capital in the vendor company become shareholders in the purchasing company. So नॉट लेस देन मतलब 90% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स जो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको परचेसिंग कंपनी के भी शेयर होल्डर्स बनना पड़ेगा. समझ में आया? पहले असेट्स था, सारी असेट्स वेंडर कंपनी के परचेसिंग कंपनी के पास आ जाना चाहिए, शुड बिकम द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द परचेसिंग कंपनी. सेकंड, नॉट लेस देन 90%, मतलब 90% एंड मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल शुड बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द परचेसिंग कंपनी. एंड नेक्स्ट है जो हमारा पीसी है ना, इट शुड बी डिस्चार्ज. पीसी इज डिस्चार्ज और satisfied by issue of equity share, by issue of इक्विटी शेयर्स. तो यहाँ पे पीसी आप और कोई जरिए से डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो. कैश मतलब नॉर्मली हमारा क्या होता है, हम कैश में डिस्चार्ज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, एनी अदर मोड ऑफ डिस्चार्ज इज अलाउड. बट इन केस ऑफ मर्जर इट शुड बी ओनली इक्विटी शेयर्स. बट कभी कुछ फ्रैक्शन कम पड़ता है ना, शेयर्स में नहीं दे सकते तो वो कैश में दे सकते हैं, बट मेजॉरिटी इज इक्विटी शेयर्स. एंड बिजनेस, नेक्स्ट कंडीशन इज जो वेंडर कंपनी का बिजनेस था ना, वेंडर कंपनी का जो बिजनेस था वही बिजनेस परचेसिंग कंपनी को भी कैरी ऑन करना है. दिस द बिजनेस ऑफ द वेंडर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय द परचेसिंग कंपनी. तो वेंडर कंपनी को क्या करना है, आई मीन परचेसिंग कंपनी को क्या करना है, द बिजनेस ऑफ द वेंडर कंपनी इज अज्यूम टू बी, मतलब इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय द परचेसिंग कंपनी. एंड द लास्ट पॉइंट इज related to book value of the assets and liabilities. They say कि यहाँ पे जो assets and liabilities ट्रांसफर होता है वो बुक वैल्यू में ट्रांसफर होता है, रिवाइज वैल्यू ले ही नहीं सकते. वी हैव टू टेक द बुक वैल्यू. नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ द assets and liabilities of the vendor company when they are incorporated in the accounts of the purchasing company, except to ensure that the accounting policies are uniform, because business भी carry on, same business carry on होने वाला है. तो इसके वजह से ऐसा लगना चाहिए सेम ही बिजनेस है, तो असेट को नया वैल्यू नहीं देखते. सेम जो जूने कंपनी, जो वेंडर कंपनी का जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है, सेम असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी कैरीड फॉरवर्ड बाय द in the books of the purchasing company. और ये है 5 conditions which are assumed in the nature of merger. और in the nature of purchase क्या होता है, अगर ऊपर में से कोई एक या एक से ज्यादा मीन्स एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, जब अमालगमेशन के टाइम ऊपर का 5 में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मर्जर बिकम्स इन द नेचर ऑफ परचेस. So amalgamation in the nature of purchase is defined as an amalgamation which does not satisfy any one or more of the conditions applicable to the merger. मतलब in the nature of merger जो भी सब conditions है उसमें से अगर एक भी condition satisfy नहीं हुआ, then it becomes amalgamation in the nature of purchase. Means I hope you have understood this. So इसके बाद let us now start with the journal entries in the purchasing company. Journal entries in the purchasing company.
परचेसिंग कंपनी, एंड यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, परचेस मेथड, परचेस मेथड, मर्जर मेथड नहीं है अपने को। सो इफ यहाँ पे लिख देती हूँ, एनी वन और मोर देन वन conditions of the amalgamation in nature of amalgamation in nature of merger, amalgamation in nature of merger is not satisfied, is not satisfied, it becomes amalgamation in the nature of amalgamation in the nature of purchase. It becomes amalgamation in the nature of purchase. Now let us see the journal entries. Let us see the journal entries. So the first one is, क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी, परचेज भी बोल सकते हैं इसको, परचेज और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी। तो बिजनेस जब परचेस होता है तो उसकी क्या एंट्री है, बिजनेस परचेस हो रहा है तो वी राइट बिजनेस परचेस अकाउंट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी, लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी, लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, परचेस, अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन लेते हैं, अमाउंट ऑफ पीसी इज टेकन। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब बिजनेस परचेस हो रहा है तो जो कंसिडरेशन मिल रहा है दैट इज द परचेस कंसिडरेशन। So when the business of the vendor company is purchased, we pass the amount of PC हम लिखते हैं, और बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी का नाम रहेगा लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी, और जो अमाउंट है वो पीसी का अमाउंट लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, इट इज इनकॉर्पोरेटिंग the assets and liabilities, incorporating assets and liabilities of vendor company taken over, of vendor company taken over। मीन जब बिजनेस अमालगमेट होगा तो जो assets and liabilities है वेंडर कंपनी का, that will be taken over, that will or may be taken over by the purchasing company। तो जितने भी सारे assets टेक ओवर हुआ है परचेस मेथड में, हम उसका बुक वैल्यू अगर रिवाइज वैल्यू नहीं दिया है तो मीन्स वो व्हेन दिस assets and liabilities are being incorporated, what we do, we take the revised value of the assets and liabilities, but if a revised value is not given, we take the बुक वैल्यू। इन द नेचर ऑफ परचेस हम क्या करते हैं, हम सारा असेट्स लेते हैं, बिकॉज ओल्ड कंपनी का असेट्स बिकम द असेट्स ऑफ द न्यू कंपनी, परचेसिंग कंपनी। तो जब परचेसिंग कंपनी जो भी सारे असेट्स को लेता है वो सब असेट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। अगर इफ इन केस एनी ऑफ द असेट इज नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी, दैट विल नॉट कम हियर, दैट विल not come here in the books of the new company, that will not come here in the books of the new company, means we will be taking all those assets which are taken over by the न्यू कंपनी, दैट इज द परचेसिंग कंपनी। तो वो सब असेट्स को जो वैल्यू में लिया है वो वैल्यू में यहाँ पे लिखेंगे। इन द नेचर ऑफ परचेस व्हाट वी डू, वी टेक द असेट्स इन द रिवाइज्ड वैल्यू
और बुक वैल्यू, अगर रिवाइज वैल्यू इज नॉट गिवन वी विल टेक इन द बुक वैल्यू। एंड वन मोर थिंग, इसके बाद क्या होगा, असेट के साथ साथ लाइबिलिटीज भी लिया रहेगा, वेरियस लाइबिलिटीज, वेरियस लाइबिलिटीज भी रहेगा, लाइबिलिटीज प्रोविजन जो भी रहेगा वो भी रहेगा इधर। और हम लोग क्या करेंगे इधर, अगर सपोज जो हमने ऊपर यहाँ पे बिजनेस परचेस लिया था, देखो बिजनेस परचेस, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ये पीसी का अमाउंट आ जाएगा, बिजनेस परचेस कैंसिल करना है उसको, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरियस लाइबिलिटीज और टू बिजनेस परचेस। और इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना, जो बैलेंसिंग फिगर होता है, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी, अगर हम लोग कभी भी परचेज कंसिडरेशन असेट से ज्यादा, द डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लाइबिलिटी इज अ पीसी, तो हम लोग कभी एक्स्ट्रा पैसा पे करते बिजनेस परचेज करते वक्त, परचेसिंग कंपनी अगर एडिशनल अमाउंट पे करता है while purchasing the business of the vendor company, if the purchasing company makes an additional payment, then we say it as goodwill, then we say it as goodwill account। ये नॉर्मली क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, may or may not be given। so ये goodwill, what is this goodwill, this may be the balancing figure, this may be the balancing figure, तो goodwill may be the balancing figure, goodwill may be the balancing figure। so इसके अलावा कभी हम कम, परचेसिंग कंपनी कभी कम पैसा देती है, परचेसिंग कंपनी कभी कम पैसा देती है, तो गुडविल नहीं, इट बिकम्स कैपिटल रिजर्व, तो इट बिकम्स कैपिटल रिजर्व। मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है, इट में बी गुडविल और इट में बी कैपिटल रिजर्व। मतलब अगर हम लोग, अगर द परचेसिंग कंपनी is paying extra amount to the vendor, then that extra amount is for the goodwill। but if the purchasing company is paying less amount as PC, purchase consideration, then the less amount, the difference between the asset and liability, the less amount is the capital reserve। तो यहाँ पे दो बैलेंसिंग फिगर हो सकता है, या तो इट में बी capital reserve or it may be goodwill। So this is for incorporating assets and liabilities of the vendor company taken over। And next, so इसके बाद next one क्या है, next one, there is one reserve known as statutory reserve, create statutory reserve। Now what do you mean by statutory reserve? These are some of the reserves which has to be compulsorily maintained, or as per law this has to be maintained for few number of years। मतलब जब अमालगमेशन हुआ तो वेंडर कंपनी में कुछ ऐसे रिजर्व्स होंगे जिसको जो वेंडर कंपनी के ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दो शेयर होल्डर्स। नॉर्मली रिजर्व्स ऑफ द कंपनी इन द परचेज मेथड इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the shareholders of the vendor company। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम सारे रिजर्व्स को, बिकॉज वो मैंने लास्ट एंट्री बताया था, देखो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते among the shareholders। but here what happens, यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स प्रॉफिट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट रिजर्व, ऐसे सब रिजर्व्स है। तो ये रिजर्व्स को हम
क्या बोलते हैं, इसको हम स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलते हैं. मीन्स एज पर लॉ इट हैज टू बी मेंटेन्ड, एज पर लॉ इट हैज टू बी मेंटेन्ड. तो am I audible to everyone? So as per law this reserve has to be maintained. तो वो रिजर्व हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो रिजर्व को हम एंट्री पास करते हैं. तो उसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट करते, जिसको हम बोलते हैं अमालगमेशन, अमालगमेशन एडजस्टमेंट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व. इसको क्या बोलते हैं हम, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व. तो ये रिजर्व, ये भी हम नेगेटिव, ये हम क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट बनाएंगे अमालगमेशन के बाद, जब आफ्टर अमालगमेशन का बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को ब्रैकेट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस के ब्रैकेट में बताएंगे. दिस इज नेगेटिव अमाउंट शोन इन द रिजर्व एंड सरप्लस. तो हम क्या करते हैं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस है, तो भी इसको रिजर्व एंड सरप्लस में बताना. जैसे देखो ड्राइंग को हम कैपिटल में दिखाते हैं, ड्राइंग जो है इसको हम कैपिटल में लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, बट कैपिटल में से माइनस करते हैं तो ऐसा नेगेटिव फिगर बताते हैं. तुमने पार्टनर्स और सोल ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट में तुम लोगों ने देखा रहेगा. तो सेम वे जब हम ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बताएंगे, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, बिकॉज इट्स अ रिजर्व, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम ब्रैकेट में इम्प्लाइंग इट एज अ नेगेटिव आइटम, implying it as a negative item, हम इसे ब्रैकेट में बताएंगे अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. सब स्टैट्यूटरी रिजर्व्स लिखना है, तो टू स्टैच्यू, नेम ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व में लिख लेती हूँ. तो यहाँ पे हम रिजर्व्स क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. उसके बाद दूसरा क्या है, टू प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट. देखो एक्सपोर्ट करना इज कंपलसरी, तो उसका जो रिजर्व है उसको यूज नहीं करना चाहिए. तो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट रिजर्व, ऐसे भी कभी दे सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट एक्सपोर्ट को प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट रिजर्व. एंड इट मे बी डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व. इसके अलावा इट मे बी इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व. क्वेश्चन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा. 99% टाइम इट विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट कि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इसको मेंटेन करो. बट अगर नहीं भी दिया है तो तुमको समझना चाहिए, अगर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है तो इट्स अ स्टैट्यूटरी रिजर्व. टी डेवलपमेंट अकाउंट. सो ये सब रिजर्व्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम स्टैट्यूटरी रिजर्व में शो करेंगे. स्टैट्यूटरी मतलब एज पर लॉ वी हैव टू मेंटेन दिस रिजर्व फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ ईयर्स. फ्यू ईयर्स तक हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो उसको मेंटेन करते रहना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज we have to discharge the purchase consideration. Purchase consideration, I am writing in short form PC, discharge of purchase consideration. So तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे देखो लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी है, उसको अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया. सो लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट
इसके बदले में पीसी में क्या दे सकते हैं? हम पीसी में न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल दे सकते हैं। न्यू कंपनी इज अ परचेसिंग कंपनी। और क्या दे सकते हैं? न्यू कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? और हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम, और अगर ये इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम में रहेगा तो एक नया रिजर्व आएगा। मतलब 10 रुपीज का शेयर हम 12 रुपीज में देंगे तो इट बिकम्स प्रीमियम। और अगर हम डिस्काउंट में देंगे 10 रुपीज का शेयर 8 रुपीज में या 10 रुपीज से कम में, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ऐसे और एक चीज पीसी में दे सकते हैं। पीसी में एक और चीज दे सकते हैं, दैट में बी कैश भी दे सकते हैं। तो इट इज गोइंग आउट कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट में, बिकॉज न्यू कंपनी का तो पैसा जा रहा है। तो इसके बाद एक और चीज वी कैन शो हियर, पीसी में अगर डिबेंचर्स दिया है तो वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन लेट अस सी शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड। शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, तो पे करेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस तो पैसा बाहर जाएगा। दिस विल बी शोन इन द असेट साइड। ये हम किधर बताएंगे? असेट साइड में बताएंगे। और पे करेंगे तो क्या जाता है? ये फिक्टिशियस असेट है शेयर इशू एक्सपेंस पे करना, तो कैश बैंक अकाउंट पैसा बाहर गया। करेक्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट वन, that is sixth one, we will see dissolution expenses or realization expenses। dissolution expenses या realization expenses borne by या paid by, expenses paid and borne by purchasing कंपनी। अगर हमने लास्ट जर्नल एंट्री में देखा था रिजोल्यूशन एक्सपेंस वेंडर कंपनी अगर पे एंड बोन करता है, तो यहाँ पे अगर दिस वन परचेसिंग कंपनी अगर इसे बेयर करता है तो क्या होगा? हम इसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा उसमें बताएंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर हम पे करेंगे तो हमारा कैश बाहर जाएगा। सो दिस इज, हमें जो भी इसके बाद अगर हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस शेयर में पे करने वाले तो शेयर कैपिटल लिखेंगे इधर। अगर हम कैश में नहीं पे कर रहे, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू पास द एंट्री। इसके बाद लास्ट एंट्री है सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब अगर क्वेश्चन में गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व दोनों आया है तो सेट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, सेटअप ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व।
सेटअप ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल को सेट ऑफ करना है, सेट ऑफ मतलब कैंसल करना है। सपोज 5,000 गुडविल है, 2,000 कैपिटल रिजर्व है, तो जो कम वाला चीज है ना उसको हम कैंसल करेंगे। तो दोनों में सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल रिजर्व 10,000 है, गुडविल 5,000 है, तो जो कम वाला है उतना अमाउंट हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा और उतना ही गुडविल भी कम हो जाएगा। अब देखो 10,000 गुडविल है और कैपिटल रिजर्व सपोज 2,000 है, तो हम 2,000 कैंसिल करेंगे, तो 2,000 के लिए कैपिटल रिजर्व कम हुआ और उतना ही 2,000 के लिए गुडविल भी कम हो जाएगा। गुडविल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, कम होता है तो क्रेडिट में। कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बट कम होता है तो डेबिट में दिखाते हैं। तो दोनों को कैंसल करना है। सेट ऑफ मतलब क्या, जितना पोर्शन दोनों का सेम है, मतलब या तो हमें गुडविल दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में या तो हम कैपिटल रिजर्व दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में। तो इसलिए हम एक को सेट ऑफ करते हैं, जो भी कम वाला अमाउंट होगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से, कम वाला जो होगा उसको हम निकाल देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, कैंसल कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व भी उतना कम होगा, गुडविल भी उतना कम होगा। दिस वाज द लास्ट एंट्री in this journal entries in the of the purchasing company. With this the journal entries are done, and from next lecture onwards we will start with the practical sums of this chapter. You will find it similar to conversion of limited company into conversion of firm into limited company का जो chapter था, you will find it almost similar to this chapter. And amalgamation of firms भी आपने SY में किया, that was also a similar chapter. तो ये chapter हमारे लिए एक ऐसा रहेगा कि आपका revision type होगा. Okay, with this I will end today's lecture. Thank you very much everyone.